क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पहले इस वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो अगर एक कांस्टेंट फंक्शन होता है ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, then f is obviously क्या होगा? Yes, integrable on close interval a comma b। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि f नॉन कांस्टेंट मोनोटोन फंक्शन होगा। So let f be a नॉन कांस्टेंट monotone function on close interval a comma b। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट एफ बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं? एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a comma b, जहां पे क्या होगा? विथ अ लोअर बाउंड यस एफ ऑफ ए एंड एन अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड यस एफ ऑफ बी। अब हम लोग एक पार्टीशन को चूज करेंगे। सो लेट पी बी अ पार्टीशन of close interval a comma b such that क्या होगा? norm p is less than epsilon by f of b minus f of a, where epsilon greater than 0 be given। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि p इक्वल टू x0, x1, x2, डॉट 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 क्या होगा? यस xr माइनस 1, xr, डॉट 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 xn, वेयर a इक्वल टू क्या होगा? x0 लेस देन x1 less than x2 less than dot 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 less than xr minus 1 less than xr less than dot 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 less than xn equal to b। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि ir इक्वल टू क्या होगा? xr minus 1 xr एंड यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस xr minus 1 फॉर r इक्वल टू क्या होगा? Yes, 1, 2, dot dot dot, n। Now हम लोग एज्यूम करेंगे कि कैपिटल M आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू IR इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ xr एंड स्मॉल m आर इक्वल टू क्या होगा? इन्फ ऑफ f ऑफ x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू IR ये क्या हो जाएगा? यस f ऑफ xr माइनस 1, जहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं? फॉर r इक्वल टू 1, 2, डॉट 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 n। अब जीरो लेस और इक्वल टू यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये किसके बराबर हो जाएगा? समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा r, ये क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a प्लस 1 समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा r, और डेल्टा r क्या है? xr माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a प्लस 1,
इंटू क्या होगा, यस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन. सो फॉर अ given epsilon greater than 0, we get 0 less or equal to UPF minus LPF. ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन. This being sufficient, क्या होगा, sufficient, yes, condition of क्या, correct, integrability f is integrable on closed interval a comma b, proceeding in the same manner we can prove that if f is monotonically decreasing, then also f is क्या, yes, integrable, that means Riemann integrable on closed interval a comma b. Hence the theorem is proved. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a bounded function f having a finite number of points of discontinuity on closed interval a comma b is integrable on closed interval a comma b. तो डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट्स कैसे होना चाहिए, फाइनाइट. एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं बॉक्स एक्स को. अब इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी बाउंडेड on the closed interval a comma b and the set of its points of discontinuity has only a finite number of limiting points. इसका मतलब क्या है, फंक्शन बाउंडेड है और पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है, इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन उसका जो लिमिटिंग पॉइंट्स है वो हमेशा फाइनाइट ही होगा. देन f is integrable on closed interval a comma b. अब if f of x is integrable on a less or equal to x less or equal to b, then it is integrable on c less or equal to x less or equal to d. जहाँ पे क्या है, a less or equal to c less than d less or equal to b, and integration a to b f dx को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to c f dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f dx. नोट में क्या दिया हुआ है, if f of x is integrable on closed interval a comma b and a less than c less than b, then from the above theorem हम क्या बोल सकते हैं, f of x is integrable on closed interval a comma c and c comma d. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, if f of x is integrable on a less or equal to x less or equal to c and on c less or equal to x less or equal to b, then it is integrable on closed interval a comma b. अब if f maps closed interval a comma b to r and g maps closed interval a comma b to r, both integrable on closed interval a comma b, तब क्या होगा, f plus minus g is integrable on closed interval a comma b and integration a to b f plus minus g dx इक्वल टू क्या होगा, a to इंटीग्रेशन a to c f dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन c to b g dx. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट f of x into g of x of two integrable functions f of x and g of x on a less or equal to x less or equal to b is also integrable on closed interval a comma b. लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, इंटीग्रेशन a to b
f of x into g of x dx equal to integration a to b f of x dx into integration c to d f of x dx ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता है। अब हम लोग इस वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 केसेस को ले लेंगे। पहला वाले केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि लैम्डा इक्वल टू 0, तब लैम्डा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड शो लैम्डा एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब इंटीग्रेशन a टू b लैम्डा एफ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा बाहर आ जाएगा a टू b f dx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब केस 2 में हम लोग एज्यूम करेंगे कि लैम्डा yes ग्रेटर देन 0 लेट curly p of a comma b be the set of all क्या होगा yes partitions of close interval a comma b। तब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन a बार टू b लैम्डा f dx इक्वल टू ये क्या होता है supremum of the set LP lambda f such that p belongs to yes curly p a b इक्वल टू क्या हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ द सेट लैम्डा यहाँ आ जाएगा तो लैम्डा इंटू एल पी एफ सच दैट p belongs to curly p a कॉमा b इक्वल टू लैम्डा भी यहाँ पे आ जाएगा तो लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ द सेट एल पी एफ सच दैट p belongs to curly p a b इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ द सेट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a बार टू b f dx क्यू सॉरी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b लैम्डा बाहर आ जाएगा f dx क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि f be इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब हम लोग क्या निकालेंगे एंड इंटीग्रेशन a टू b बार लैम्डा f dx ये किसके बराबर होता है इन्फिमम ऑफ द सेट UP लैम्डा f such that p belongs to क्या होगा yes p belongs to curly p a b। आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्या क्या लिखी है मैंने, जगह थोड़ी कम है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिमम ऑफ द सेट लैम्डा बाहर आ जाएगा यूपी एफ सच दैट p belongs to curly p a b इक्वल टू क्या हो जाएगा यस लैम्डा बाहर आ जाएगा इन्फिमम ऑफ द सेट UPF such that p belongs to curly p a b
तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स। और ये किसके बराबर होगा, यस इंटीग्रेट लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, क्योंकि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन यस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए बार टू बी लैम्डा एफ डी एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी बार लैम्डा एफ डी एक्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी लैम्डा एफ डी एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स and lambda f is integrable on close interval a comma b। अब हम लोग केस 3 को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यस लैम्डा लेस देन 0, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है। अब हम लोग एज्यूम करेंगे कि म्यू इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली यस ग्रेटर देन 0। अब इंटीग्रेशन ए बार टू बी लैम्डा एफ डी एक्स, ये किसके बराबर होगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट क्या होगा, yes LP lambda f such that P belongs to curly P AB equal to supremum of the set LP, ये क्या होगा, माइनस म्यू such that P belongs to curly P AB equal to supremum of the set। जब माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यस यूपी म्यू एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू कर्ली पी ए बी इक्वल टू क्या होगा, अब माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिमम ऑफ द सेट यूपी म्यू एफ such that P belongs to curly P AB equal to ये क्या हो जाएगा, यस माइनस म्यू को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, पिछले टेस्ट की तरह ही इंटीग्रेशन ए टू बी बार म्यू एफ डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स बाई केस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी एज्यूम किया है कि माइनस म्यू किसके बराबर होगा, यस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, यस क्योंकि एफ इज इंटीग्रेबल on close interval a comma b। अब इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, यस इन्फिमम ऑफ द सेट यूपी लैम्डा एफ, जहां पे p बिलोंग्स टू कर्ली p ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ द सेट यूपी माइनस म्यू एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू कर्ली पी ए बी। अब माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, यस एल पी एफ सॉरी एल पी म्यू एफ सच दैट पी बिलोंग्स टू कर्ली पी ए बी इक्वल टू, अगर माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट
LP mu f such that P belongs to curly P AB equal to minus integration A to B bar, ये क्या होगा, mu f dx बाई केस टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस म्यू इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स बाई केस टू। तो ये किसके बराबर होगा, यस लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ए टू बी बार लैम्डा एफ डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ए बार टू बी लैम्डा एफ डी एक्स इक्वल टू क्योंकि एफ इज इंटीग्रेबल, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी बार लैम्डा एफ डी एक्स। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा एफ इज यस इंटीग्रेबल on close interval a comma b and integration a to b lambda f dx किसके बराबर होगा, yes integration a to b बाहर आ जाएगा lambda f dx, hence proved। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।